Good morning to all of you. On your request, I'm here again with the topic Pure Theory of Law, provided by or propounded by Hans Kelsen. Basically, this theory is also known as Theory of Pure Science of Law and also known as Theory of Interpretation. So let's have a quick overview about the early life and career of Hans Kelsen so that we can get a background or idea as to what has affected Kelsen so that he propounded this pure theory of law. As you can see over here that his lifespan was from 1881 to 1973. Basically, it is said about him that he revived the original analytical legal thought through his pure theory of law. That means the analytical theory of jurisprudence or the analytical point of view of jurisprudence was, going to lose somewhere, or it was losing its importance, it was losing its significance, or it was amalgamating into another schools. So what has Kelsen did to it? Kelsen revived this original analytical legal thought अपनी pure theory of law के through. Let's have a quick view of his life and career also. He was born at Prague in Austria in the year 1881. He was a professor of law at the Vienna University. He also was a judge of the Supreme Constitutional Court of Austria for 10 years, and those 10 years were the time period between 1920 to 1930. He was also an emeritus professor of political science in the California University, and that is the time when he propounded his pure theory of law. So let's start about what is the theory of pure science of law. As the name itself suggested कि यहाँ पर उन्होंने बात की है कि जो लॉ होना चाहिए वो किसी और डिसिप्लिन के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए, वो अपने आप में फुल एंड फ्लेजर होना चाहिए. एंड इसी थ्योरी को हम एनालाइज करेंगे इसी एक बैकड्रॉप आइडिया के साथ में कि उन्होंने कहीं पर भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करा है कि लॉ शुड बी अमैलगमेटेड विद अदर डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज. तो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली ही इंसिस्टेड कि जो लॉ है उसे सेपरेट होना चाहिए फ्रॉम पॉलिटिक्स और किसी भी एक्स्ट्रा लीगल डिसिप्लिन से. ही ऑल्सो सेड दैट it is also said usually that Kelsen's pure theory of law tried to rescue jurisprudence from vague mysticism. Now you might be wondering what is this mysticism? Mysticism को usually हिंदी में रहस्यवाद भी कहते हैं. As the name itself suggests कि जो vague mysticism है, mysticism का basically literal meaning होता है to be amalgamated to the extent to become इक्विवेलेंट टू गॉड. गॉड में इतना खो जाना कि आप गॉड खुद को ही गॉड कंसिडर करने लगो. दिस इज़ कॉल्ड रहस्यवाद और मिस्टिसिज्म. तो उन्होंने कहीं ना कहीं जुरिस्प्रूडेंस को इस वेग मिस्टिसिज्म से सेपरेट करने की कोशिश करी है. And in a way, it was a revival of John Austin's 19th century analytical jurisprudence. Analytical jurisprudence जो ऑस्टिन ने propound किया था वो उनकी ही थ्योरी को रिवाइव कर रहे थे. बट हम आगे चल के अभी इसी लेक्चर में देखेंगे कि कुछ तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे दोनों के थॉट्स में. एज इन थॉट्स में नहीं, दोनों की टर्मिनोलॉजीज में कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे. He also divested moral, ideal, ethical elements from law and wished to create a pure science of law devoid of all the moral and sociological considerations. उन्होंने लॉ में से सारे मॉरल, आइडियल और एथिकल एलिमेंट्स को निकालने की बात करी है. और he always wanted to create a pure science of law जहाँ पर कोई भी मॉरल या सोशोलॉजिकल कंसिडरेशंस इन्वॉल्व ना हो. ही ऑल्सो
rejected Austin's definition of law as a command. Rather, he introduces subjective considerations. उन्होंने लॉ एज अ कमांड, जो ऑस्टिन की डेफिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उन्होंने उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिजेक्ट किया हुआ है, और रादर ही सजेस्टेड टू इंट्रोड्यूस सब्जेक्टिव कंसिडरेशंस इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ. As you can see over here that I have provided this point that he also discarded the notion of justice as an essential element of law. उन्होंने लॉ के लॉ को एग्जिस्ट करने के लिए जस्टिस का होना ज़रूरी नहीं समझा है. एंड द रीजनिंग बिहाइंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट गिवन बाय हिम वाज, उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे लॉज तभी भी एग्जिस्ट करते हैं जब वो जस्ट नहीं होते हैं. तो justice cannot be an essential notion for the existence of law. He also defined science as a system of knowledge or totality of cognitions which have been systematically arranged as per logical principles. So this was the definition given by Hans Kelsen of science, because he was propounding the theory of pure science of law. What is purity? What is science? He has already mentioned. Let's talk about another points. I have given an important note जिसके जो रिप्रेजेंट करता है कि केल्सन का जो ग्रैंड नॉब था, it was analogous to Austin's conception of sovereign, without which law cannot be obligatory and binding. ऑस्टिन की डेफिनेशन में हमने टर्म देखा था सोवरेन, उसी का एनालॉगस टर्म है ग्रैंड नॉर्म, जो कि केल्सन ने प्रोवाइड किया था, जो कि ज़रूरी है एग्जिस्ट करना, और उसके बिना कोई भी लॉ ऑब्लिगेटरी या बाइंडिंग नहीं बनाया जा सकता है. हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है. दूसरा नोट जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो केल्सन की थ्योरी ऑफ प्योर साइंस ऑफ लॉ है, उसे थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है. उन्होंने कहा साइंस टू बी रैशनल मस्ट स्टैंड इन टू फोल्ड रिलेशनशिप विथ ऑब्जेक्ट. साइंस को रैशनल होने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ में, यानी जिस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो उसका दो तरह के रिलेशंस होने चाहिए. पहला तो इट शुड डिटरमिन द कंसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करनी चाहिए. दूसरा है कि उसकी रियलिटी को इस्टेब्लिश करना चाहिए. तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो बेसिकली इज ऑफ थ्योरेटिकल नेचर, एंड उस ऑब्जेक्ट की रियलिटी को इस्टेब्लिश करना इज ऑफ प्रैक्टिकल नेचर. अब हम बात करते हैं कि केल्सन ने लॉ को कैसे परसीव किया है. तो केल्सन ने लॉ को एक नॉर्मेटिव साइंस कंसिडर किया है. उन्होंने लॉ को नॉर्मेटिव साइंस डिस्क्राइब किया है, जो कि नेचुरल साइंस से अलग होती है. नेचुरल साइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है इज़, यानी जो फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी बात होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज डैश सी एन. डैश सी एन मीन्स इज़. बट व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेटिव साइंस? नॉर्मेटिव साइंस को आप बोलते हैं डैश सोलन. डैश सोलन का मतलब है व्हाट ऑट टू बी, राइट? तो डैश सोलन और डैश सी एन, ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं. इट माइट बी आस्क्ड इन शॉर्ट नोट्स कि आप डैश सोलन और डैश सी एन के बारे में मेंशन करिए, तो आपको बताना है नॉर्मेटिव साइंस और नेचुरल साइंस के बारे में, जो कि केल्सन की थ्योरी के अंदर प्रोवाइड किया गया है, राइट? यहाँ पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी आपको प्रोवाइड करा है, which says that Kelsen also considers sanction as an essential element of law, but he prefers to call it norm. Kelsen ने sanction को भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बनाया है लॉ का, बट उन्होंने सैंक्शन टर्म यूज़ ना करके नॉर्म टर्म यूज़ किया है. मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आपको ये बता दिया था कि केल्सन और ऑस्टिन, इन दोनों के थॉट्स में काफ़ी सिमिलैरिटी है, काफ़ी यूनिफॉर्मिटी है, बट देयर ऑल्सो लाइज अ डिफरेंस. और वो डिफरेंस किस कंसिडरेशन के हिसाब से है कि दोनों ने अलग अलग टर्म्स यूज़ किए हुए हैं. दोनों की टर्मिनोलॉजी में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा.
As per Kelsen, law is a primary norm which stipulates sanction. It is also called positive law as it is concerned only with actual and not with ideal law, right? तो please remember these 2 points. These are very important points. और जब भी आप लॉ के बारे में बात करेंगे या नॉर्मेटिव साइंस के बारे में बात करेंगे तो आपको वहाँ पर ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी, ये सब स्टेटमेंट्स मेंशन करने होंगे. लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट नॉर्म्स और सैंक्शंस. बेसिकली इट्स अ रूल फॉरबिडिंग और प्रिस्क्राइबिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर. यानी किसी तरह के बिहेवियर को किस तरीके आपको कैसे कोई एक्ट करना है या कैसे उसको मना किया गया है उसके एक्ट को, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं नॉर्म के अंदर या सैंक्शन के अंदर. सैंक्शन was used by Austin and norm is a term which has been used by Kelsen. So please remember these difference of terminologies between these two jurists. Kelsen की theory के अंदर there existed a hierarchy of norms also. He also distinguishes moral norm with legal norm. Let's talk about Grund norm. Grund norm एक बहुत ही talked about topic है Kelsen की theory के अंदर. केल्सन की थ्योरी में ग्रैंड नॉर्म से ही यूजुअली क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं. सो यू नीड टू नो व्हाट इज ग्रैंड नॉर्म एक्चुअली. केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ वाज बेस्ड ऑन pyramidal nature of hierarchy of norms which derive their validity from the basic norm, and that basic norm is called as Grund norm. तो इनकी थ्योरी में कहा जाता है कि देयर इज़ नो हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, देयर प्रिवेल्स अ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स. अब वो जो नॉर्म्स हैं या ऑस्टिन के लैंग्वेज में सैंक्शंस हैं, वो अपनी वैलिडिटी डिराइव करते हैं एक बेसिक नॉर्म से. अब वो बेसिक नॉर्म ही कहलाता है ग्रैंड नॉर्म, और ग्रैंड नॉर्म को सबसे एपिक्स पोजीशन पे प्लेस किया गया है. ग्रैंड नॉर्म इज़ इंडिपेंडेंट कि उसे किसी और नॉर्म से या किसी और चीज़ से अपनी वैलिडिटी डिराइव नहीं करनी है. सो प्लीज़ रिमेंबर यहीं पर इसी पॉइंट पर ही केल्सन की जो थ्योरी ऑफ प्योर साइंस ऑफ लॉ थी उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट भी तैयार हो जाता है कि आप बेसिक नॉर्म्स की वैलिडिटी तो ग्रैंड नॉर्म से डिराइव कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ ग्रैंड नॉर्म. ग्रैंड नॉर्म की वैलिडिटी का क्या, एज एन वो एक हाइपोथेसिस है, एक फिक्शन है, और अगर वो एक फिक्शन और हाइपोथेसिस है तो क्या आप हाइपोथेसिस के बेसिस पे बेसिक नॉर्म्स या बेसिक सैंक्शंस की वैलिडिटी डिराइव कर सकते हैं. दिस वाज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. केल्सन ने ग्रैंड नॉर्म को एक फिक्शन कंसिडर किया था और एक हाइपोथेसिस नहीं. उन्होंने कहा ग्रैंड नॉर्म किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है, वो डिक्टेटर की विल के फॉर्म में भी हो सकता है. लेट्स टॉक अबाउट दिस पिरामिड ऑफ नॉर्म्स. ये पिरामिड ऑफ नॉर्म्स आखिर है क्या, ये देख लेते हैं. केल्सन कंसिडर्स लीगल साइंस एज अ पिरामिड ऑफ नॉर्म्स विथ ग्रैंड नॉर्म जिसे बेसिक नॉर्म भी कहा जाता है एट द एपेक्स. मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि ग्रैंड नॉर्म को एपेक्स पोजिशन पे प्लेस किया गया है. जो सबऑर्डिनेट नॉर्म्स हैं दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय नॉर्म्स सुपीरियर टू देम इन हायरार्किकल ऑर्डर. इसके अलावा इन्होंने एक प्रोसेस की बात की है. अब वो प्रोसेस क्या है कि एक नॉर्म का दूसरे नॉर्म से वैलिडिटी डिराइव करना, उसे कहते हैं कॉन्क्रिटाइजेशन इन द लैंग्वेज ऑफ हैंस केल्सन. तो कॉन्क्रिटाइजेशन आखिर है क्या, लेट्स सी इट. Concretization basically is a process in which one derives its power. What is that one? One norm derives its power from the norm immediately superior to it until it reaches the grand norm. यानी कि ये upward position में move करता है. Let's see an example of it. Concretization का एक example भी देख लेते हैं. कॉन्क्रिटाइजेशन का एग्जाम्पल है कि कोई भी लीगल स्टैट्यूट अपनी वैलिडिटी डिराइव करता है लेजिस्लेटिव बॉडी से, और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ अपनी वैलिडिटी डिराइव करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ग्रैंड नॉर्म या फिर बेसिक नॉर्म का रोल प्ले करता है. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल विच इज़
given in the process of concretization. You always need to remember this. अगर आप हैंस केल्सन की थ्योरी मेंशन कर रहे हैं, आपको concretization के बारे में बताना पड़ेगा और ये एग्जाम्पल आपको देना होगा. According to Kelsen, law is not an eternal sacred order but a compromise of battling social forces. Therefore, concept of law, according to Kelsen, has no moral connotations. Please remember this particular statement. This is very very much important. Law Kelsen के हिसाब से क्या है ये आप इसी स्टेटमेंट के थ्रू जस्टिफाई कर पाएंगे. So let's see what are the salient features of Kelsen's theory of pure science of law, या फिर बेसिकली कि हम केल्सन की थ्योरी को समराइज कैसे कर सकते हैं. उन्होंने व्हाट लॉ इज़ की नॉलेज को डील किया है. दूसरा कि लॉ उन्होंने नॉर्मेटिव साइंस की तरह प्रेजेंट किया है. और तीसरा कि ये जो थ्योरी है इनकी प्योर साइंस ऑफ लॉ की, ये बेसिकली एक थ्योरी ऑफ नॉर्म्स है. ये तीनों ही पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. सो यू नो बेसिकली जस्ट कीप this line diagram in your mind so that you can easily remember what is Kelsen's theory of pure science law all about. Let's also have a quick view over the criticisms which have been given over the Kelsen's theory. So these are the criticisms which have been given about the Kelsen's theory. फर्स्ट इज़ कि इनकी थ्योरी को कहा जाता है कि बिना किसी सोशोलॉजिकल फाउंडेशन के है, क्योंकि इन्होंने सारे सोशल फैक्ट्स को अवॉइड करा है. दूसरा कि इनकी थ्योरी साइलेंट है इस पॉइंट पे कि ग्रैंड नॉर्म अपनी वैलिडिटी कहाँ से डिराइव करता है. एंड दिस इज़ द मोस्ट मेजर क्रिटिसिज्म अबाउट द केल्सन्स थ्योरी. तीसरा कि इनकी जो थ्योरी है वो कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल कंसिडरेशंस पे बेस्ड है. नेक्स्ट इज़ इन्होंने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किए हैं. इन्होंने पर्पस ऑफ लॉ को इग्नोर किया है. कुछ मेथडोलॉजिकल शॉर्टकमिंग्स हैं इनकी थ्योरी में. और ऑल्सो कि इनकी जो थ्योरी है प्योर साइंस ऑफ लॉ की, इट ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू रिवोल्यूशनरी सिचुएशंस जहाँ पर कोई भी डिक्टेटर कोई रूल्स को ओवरथ्रो करके अब रूल अज्यूम करता है. वहाँ पे केल्सन की थ्योरी कैसे एक्ट करेगी, वो बिल्कुल भी एप्ट नहीं है उस सिचुएशन के लिए. सो ये सारे क्रिटिसिज्म्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं. और अगर आपको सेलिएंट फीचर्स याद रहेंगे तो आप ईजिली क्रिटिसिज्म्स को याद रख सकते हैं कि ये क्रिटिसिज्म्स बेसिकली प्रोवाइड किए गए थे केल्सन थ्योरी ऑफ प्योर साइंस ऑफ लॉ के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट हैंस केल्सन एंड हिज थ्योरी ऑफ प्योर साइंस ऑफ लॉ, the grand norm, the process of concretization, the salient features and pyramid of norms, and also last but not the least the criticisms. Because जब भी आप किसी ज्यूरिस्ट की थ्योरीज या पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, आपको उनके क्रिटिसिज्म जो भी क्रिटिक्स ने उनको क्रिटिसाइज करा था उसको भी मेंशन करना होता है. तभी आप क्रिटिकली रिव्यू कर सकते हैं कि एक्चुअली उनकी थ्योरी में कहाँ गुड पॉइंट्स हैं, कहाँ पर लूप होल्स हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हैंस केल्सन. थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स.